ناظرین آداب، بدلتا منظر کا آج کا شمارہ لے کر ایک بار پھر ہم حاضر ہیں۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے بدلتا منظر کا آج کا شمارہ۔ آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں ایک نظر آج کے اہم موضوعات پر۔ ٹیولپ فیسٹیول 2026 رنگوں نے کیا سیاحوں کو مسحور۔ بانڈی پورہ کی خاتون نے ڈیری سے بدلی اپنی تقدیر۔ جدید ٹریننگ سے کشمیری خواتین فٹ بالرز کو ملا نیا حوصلہ۔ راجوری میں کونٹر کا خاص سڑک منصوبہ دوبارہ بحال۔ پونچھ میں ڈیری اسکیم سے روزگار کو ملی نئی اڑان۔ وادی کشمیر میں بہار کی آمد کے ساتھ ہی سری نگر کے مشہور ٹیولپ گارڈن میں ٹیولپ فیسٹیول 2026 کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، جس کا افتتاح گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کیا۔ ڈل جھیل کے کنارے واقع ایشیا کے سب سے بڑے ٹیولپ باغ میں اس بار 18 لاکھ سے زائد ٹیولپس کی دلکش بہار نے نہ صرف وادی کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے ہیں، بلکہ ملک و بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں کے لیے ایک خوابناک منظر بھی پیش کیا ہے۔ رنگوں اور خوشبو اور قدرتی مناظر کا یہ حسین امتزاج وادی میں سیاحتی سرگرمیوں کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے تیار دکھائی دے رہا ہے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر رنگوں کی بہار سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سری نگر میں رنگوں کے فیسٹیول 2026 کا آغاز ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ہاتھوں افتتاح کے فوراً بعد ملک کے مختلف حصوں سے آئے سیاحوں کی بڑی تعداد ٹیولپ گارڈن کا رخ کرتی نظر آئی، جہاں ہر طرف رنگ برنگے پھولوں کی قطاریں ایک دلکش منظر پیش کر رہی تھیں۔ سرخ، زرد، گلابی، بنفشی اور سفید رنگوں میں کھلے ٹیولپس نہ صرف آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے، بلکہ ان کی مدھم خوشبو فضا کو معطر بنا رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس موقع پر سیاحوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ٹیولپ فیسٹیول نہ صرف وادی کی قدرتی خوبصورتی کو اجاگر کرتا ہے، بلکہ سیاحت کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ شین گلی نئی بہار اور کتنا پیارا موسم ہے، برف بھی ہے، بارش بھی ہے، پھولوں کی خوشبو، مہک اور خوبصورتی یہ اور کہاں دیکھنے کو ملے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جموں کشمیر کے لیے، ہمارے ٹورزم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک نئی بہار ہوگی۔ اس بار ڈپارٹمنٹ نے کچھ ٹیریسز ایڈ کیے، ٹیریسز پہ بیڈز کے جو ہیں ڈیزائنز ان میں تبدیلی لائی، اور نئی چیز جو آئی ہے وہ سوونیر شاپ کے حوالے سے شروعات ہے۔ آہستہ آہستہ اس میں اور چیزیں لائی جائیں گی اور کوشش کی جائے گی کہ ایک نیا ایکسپیرینس جو ہے یہاں آنے والے لوگ حاصل کر سکیں۔ پہلی بار آنے والے سیاحوں نے اس باغ کی خوبصورتی کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل قرار دیا۔ کئی سیاحوں کے مطابق یہاں کا ماحول کسی جنتی منظر سے کم نہیں، جہاں ہر قدم پر قدرت کی خوبصورتی ایک نئی شکل میں سامنے آتی ہے۔ نو بیاہتا جوڑوں، خاندانوں اور نوجوانوں نے رنگین راستوں پر چہل قدمی کرتے ہوئے یادگار تصاویر اور ویڈیوز بنائی، جبکہ باغ میں موجود دیگر پھولوں نے اس رنگین منظر کو مزید دلکش بنا دیا۔ It's totally mesmerizing beauty. Just the moment I entered the garden, on seeing these tulips and snow-laden mountains and the clouds, I was totally astounded by the beauty of it altogether. I've visited many places in our country and abroad, but such beauty I haven't encountered ever in my entire life. I'm totally astounded by its beauty,
often I have read in books and everywhere that it's called, Kashmir is called heaven on earth. But this is why the reason it is called as heaven on earth, because such beauty, no one can experience everything at one place. And this is the place, and this is the reason basically why it's called heaven on earth. बर्फपोश पहाड़ों के पस मंजर और डल झील की चमकती सतह के साथ ये बाग एक जीता जागता मंजरनामा बन गया, जहां कदम रखते ही सयाह खुद को किसी ख्वाब की दुनिया में महसूस करती दिखाई दिए। हुकाम के मुताबिक ये फेस्टिवल अप्रैल के वस्त तक जारी रहेगा और आइंदा दिनों में फूलों की मुकम्मल बहार के साथ सयाहों की तादाद में मजीद इजाफा मुतवक्का है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बहार का ये मौसम जम्मू व कश्मीर में खुशहाली और तरक्की का पैगाम लेकर आएगा। It's a nice environment, no doubt about that. It's an amazing experience. It's truly the global destination of Kashmir. Not only that, it's too much flowers, too much trees, hills is amalgate for that, and this is a truly paradise of earth. Kashmir tourism is really truly favorable for any guest, any tourist. श्रीनगर का ये ट्यूलिप गार्डन आज भी एक बाग नहीं बल्कि रंगों, खुशबुओं और कुदरती हुस्न का ऐसा जादुई संगम बन चुका है जो हर आने वाले को अपनी तरफ खींच लेता है। बहार की ये दिलकश तस्वीर न सिर्फ सयाहों के दिलों में यादगार लम्हे समेट रही है बल्कि वादी कश्मीर की खूबसूरती को दुनिया के सामने एक बार फिर नुमायां कर रही है, जहां हर रंग एक कहानी सुनाता है और हर खुशबू एक नई याद छोड़ जाती है। इल्म, अदब और आब के ज़िला बांडीपोरा से एक ऐसी हौसला अफजा दास्तान सामने आई है जो न सिर्फ खुद निसारी की मिसाल है बल्कि बदलते हुए समाजी रुझानात की भी अक्कासी करती है। एक तरफ जहां नौजवान सरकारी नौकरियों के इंतज़ार में वक्त गुजार रहे हैं, वहीं एक खातून ने हिम्मत, मेहनत और अज़्म के बल पर अपनी दुनिया खुद बसा ली। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट और जानते हैं कि किस तरह एक छोटी सी शुरुआत ने एक बड़े रोजगार के सफर की शक्ल इख्तियार की। बांडीपोरा के गांव वातरीना से ताल्लुक रखने वाली मुमताज़ा बेगम ने 5 साल कबल सिर्फ 20 भेड़ों के साथ अपने सफर का आगाज किया था, लेकिन आज उनका ये छोटा सा यूनिट एक बड़े लाइव स्टॉक फार्म में तब्दील हो चुका है, जहां 500 से ज़ायद भेड़ें मौजूद हैं। सख्त मौसमी हालात, महदूद वसाइल और समाजी रुकावटों के बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मुसलसल मेहनत के जरिए अपने ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। मैंने कुछ सालों पहले ये शुरू किया था, ये काम 20 बेडों से शुरू किया था। फिर मुझे एक यूनिट भी मिला शीप डिपार्टमेंट की तरफ से, उससे भी मुझे मदद मिला। मुझे अपना शौक भी था, असल में शौक ही सब कुछ होता है, अगर मतलब इंसान मेहनत करे तभी कुछ बनेगा। फिर मेहनत भी की, आज 500 बेड है मेरे पास और रोज़गार भी दिया कुछ लोगों को। आज इस घर में 4 आदमी काम कर रहे थे। ये सफर आसान नहीं था क्योंकि एक ऐसे मुआशरे में जहां मवेशी पालना मर्दों का शोबा समझा जाता है, मुमताज़ा बेगम को इब्तिदा में तनकीद और शकूक का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत और मुस्तकिल मिजाजी के साथ न सिर्फ इस मैदान में अपनी जगह बनाई बल्कि बगैर किसी रस्मी तरबियत के अमली तजुर्बे के जरिए अफजाइश, खुराक और देखभाल के तमाम मराहिल सीख लिए। इनकी यही लगन आज इनकी कामयाबी की बुनियाद बन चुकी है। हमारे पास जवान भी आ रहे हैं और लेडीज़ भी आ रहे हैं। लेडीज़ में हम देते हैं 10% कोटा अलग उनको। अगर जो भी स्कीम आती है, जगह ISDS है, HADP है, उनमें हम उनको 10% कोटा अलग रखते हैं, 10% उनके लिए। तो 10% अलावा उनको जनरल में भी हम अपना कोटा अलग देते हैं। तो बहुत सारी लेडीज़ जिन्होंने यूनिट एस्टेब्लिश कर लिए हैं, जैसे वतरना में हमारी
ایک لیڈی ہے تو اس نے آلریڈی ایک یونٹ اسٹیبلش کیا اور وہ بخوبی اپنا جو روزگار اس سے کما رہی ہیں. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ میں 15 لیڈیز یونٹ دے دیے ہیں ان کو اور وہ اپنا یونٹس بخوبی چلا رہے ہیں. ممتازہ بیگم کا یہ فارم اب صرف ان کی ذاتی کامیابی تک محدود نہیں رہا بلکہ مقامی لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بھی بن چکا ہے. کئی افراد یہاں مستقل بنیادوں پر کام کر رہے ہیں جنہیں نہ صرف آمدنی حاصل ہو رہی ہے بلکہ ان کے گھروں کا نظام بھی بہتر انداز میں چل رہا ہے. محکمہ شیپ ہسبنڈری کی معاونت اور سرکاری اسکیموں نے بھی ان کے سفر کو مزید تقویت دی جس کے ذریعے انہوں نے اپنے یونٹ کو وسعت دی اور ایک مثال قائم کی. گھر پہ بیٹھنے سے بہتر ہے یہ کام, اس میں نہیں شرمانا. یہ بیڈ ہے یا اور بھی کتنے سکیم ہے اور بھی مطلب گائے باقی سکیم ہے. کچھ عورتیں گائے پالتی ہے اس سے گھر چلاتی ہے. مجھے اپنے حساب سے یہی ٹھیک لگا, میں نے یہ کیا. میں باقی جو عورتیں ہیں ان کو یہی کہنا چاہتی ہوں مت بیٹھو ایسے گھر پہ, کچھ کرو. سکیمز ہے اتنی سکیمز, فائدہ اٹھاؤ. جاؤ دیکھو جو مطلب من میں آئے پھر کرو. بانڈی پورہ کی یہ کہانی صرف ایک خاتون کی کامیابی نہیں بلکہ ایک سوچ کی تبدیلی کی علامت ہے جہاں خود انحصاری محنت اور حوصلے کی ایک نئی راہ دکھائی دیتی ہے. ممتازہ بیگم کا سفر اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ اگر عزم مضبوط ہو تو محدود وسائل بھی بڑی کامیابیوں کا راستہ بن سکتے ہیں, اور یہی جذبہ وادی کے نوجوانوں کے لیے ایک نئی امید اور نیا حوصلہ بن کر ابھر رہا ہے. وادی کشمیر میں جہاں ایک طرف فطرت اپنی خوبصورتی کے رنگ بکھیرتی ہے وہیں سری نگر کے فٹ بال گراؤنڈ میں نئی نسل اپنی خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے میں مصروف ہے. کشمیری لڑکیاں اب فٹ بال کے میدان میں اپنی الگ پہچان بنا رہی ہیں جہاں جدید ٹریننگ تکنیک نے ان کے کھیل میں ایک نیا جوش اور نیا اعتماد پیدا کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح یہ نوجوان کھلاڑی مشکلات کے باوجود اپنی منزل کی جانب بڑھ رہی ہیں. سرد موسم, محدود وسائل اور سماجی رکاوٹوں کے باوجود سری نگر کی یہ نوجوان لڑکیاں فٹ بال کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں. بدلتے ہوئے ٹریننگ طریقوں نے ان کے کھیل میں نہ صرف بہتری پیدا کی ہے بلکہ ان کے انداز, خود اعتمادی اور ٹیم ورک کا جذبہ بھی مضبوط کیا ہے. صبح کی خنک ہوا میں جب یہ کھلاڑی میدان میں اترتی ہیں تو ان کی محنت اور لگن ہر لمحے نمایاں نظر آتی ہے. میں 10 سال سے کھیل رہی ہوں, جب میں 6 کلاس میں تھی, اور فٹ بال ایسا تھا کہ بچپن سے لڑکوں کو دیکھ کے ویسا ہوتا تھا کہ ہم بھی کھیلیں گے کیونکہ تب گرلز نہیں کھیلتی تھی. تو مطلب فٹ بال ایک ایسا سپورٹ ہے جس میں آپ مطلب اس میں کوئی آپ کا ایج ویسا وہ نہیں ہے, آپ کا ایکویلٹی پراپر ملے گا, آپ کو بوائز گرلز میں ڈفرینس نہیں ملے گا, دونوں کو پراپر ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور مطلب بہت زیادہ فٹنس پورا پراپر طریقے میں سب کچھ ہوتا ہے. تو اسی لیے میں نے اس گیم کو چوز کیا کیونکہ یہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے سب گیم سے. ان کھلاڑیوں کے لیے فٹ بال محض ایک کھیل نہیں بلکہ ایک خواب ہے جسے وہ ہر روز نئی توانائی کے ساتھ جینے کی کوشش کرتی ہیں. جدید کوچنگ تکنیک, فٹنس ڈرلز اور سکل ٹریننگ نے ان کے کھیل کو ایک نئی سمت دی ہے. میدان میں دوڑتے قدم, گیند پر مضبوط کنٹرول اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی ان کی محنت کا واضح ثبوت پیش کرتے ہیں جو مستقبل میں بڑی کامیابیوں کی بنیاد بن سکتی ہے. Well, it's been a year that I've started this game, and like this game has given me a lot of things. I've learned a lot of things in this year. Aside from skills and techniques, I've grown discipline in my life.
passion for the game, dedication for the game, and I'm very grateful that I like chose this game and all. Well, I encourage all the girls to come in sports. It's not necessary that it's going to be football, any other sport. You know, in Kashmir we see, you know, sports is all, you know, men dominated. But why not women? Like, why not girls? We have talent, we can come and like play, and you know, we can play here and, you know, have a future in sports, I guess. अगरचे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और दीगर चैलेंजेस आज भी मौजूद हैं, लेकिन इन लड़कियों का हौसला किसी भी रुकावट से बड़ा दिखाई देता है। कोचेज और मुतल्लिका अफराद की रहनुमाई में ये खिलाड़ी न सिर्फ अपनी सलाहियतों को निखार रही है, बल्कि वादी में ख़वातीन के खेलों के फ़रोग़ के लिए एक नई मिसाल भी कायम कर रही है। इनकी ये जद्दोजहद इस बात की गवाही देती है कि अज़्म मजबूत हो तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। देखिए, अगर हम लड़कियों की बात करेंगे, लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स एक अहम रोल रखता है। अगर हम देखेंगे लड़कियों में आजकल बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, तो स्पोर्ट्स एक ऐसा ज़रिया है उनके लिए कि जो उनको उस हेल्थ इश्यूज से दूर रख सकता है, वो प्रॉब्लम्स ठीक कर सकता है जो भी उनको घर बैठे होता है। तो स्पोर्ट्स एक ऐसा वे है कि जो हर एक इंसान को मेंटली एंड फिज़िकली फ़िट रखता है। सो गर्ल्स के लिए तो ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। मैं खाली फ़ुटबॉल की बात नहीं करूँगी, लड़की जिसमें भी इंटरेस्ट हो उस स्पोर्ट्स में जा सकती है, अपना करियर बना सकती है, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकती है और अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन ले सकती है। श्रीनगर के इन मैदानों में गूंजती हर किक, हर पास और हर गोल एक नई कहानी सुना रहा है। हिम्मत, हौसले और ख्वाबों की कहानी ये कश्मीरी लड़कियां न सिर्फ फुटबॉल खेल रही हैं, बल्कि अपने लिए एक नई पहचान भी तराश रही हैं, जहां हर कदम इन्हें कामयाबी की तरफ ले जा रहा है और हर लम्हा एक रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना रहा है। पीर पंजाल के पहाड़ी और सरहदी ज़िला राजौरी में एक अहम सड़क मंसूबा एक बार फिर ज़िंदगी की अलामत बनता दिखाई दे रहा है। शदीद बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से मुतासिर होने के बाद कोटरंका ख्वास सड़क पर बहाली का काम दोबारा शुरू हो चुका है, जो न सिर्फ आमद-ओ-रफ्त बल्कि अवामी ज़िंदगी की रवानी के लिए भी निहायत अहम है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट कि किस तरह ये मंसूबा मुश्किलात के बाद एक नई उम्मीद बनकर उभर रहा है। 32 किलोमीटर तवील कोटरंका ख्वास सड़क, जो कोटरंका सब डिवीजन को ख्वास तहसील से जोड़ती है, हालिया शदीद बारिशों और जमीन धंसने के बाइस बुरी तरह से मुतासिर हो गई थी। इस अहम शाहराह की बंदिश ने कई देहात का राबिता मुनक़त्ता कर दिया था, जिसके बाइस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि लोगों को बुनियादी सहूलियात के हुसूल के लिए कई किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ा। सूरत-ए-हाल की संगीनी को देखते हुए अब इस सड़क की बहाली और तामीर नौ का काम दोबारा शुरू कर दिया गया है। हालिया 2 साल पहले ये रोड बनी और अचानक से फ्लड आने की वजह से हमारी रोड जो है टूट गई है और ये पूरी रोड मैक्सिमम जगहों में टूटी हुई है। मैं एलजी साहब को ये गुजारिश करना चाहता हूँ, डीसी साहब राजौरी को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये कोटरंका ख्वास रोड जो है जम्मू तक कनेक्ट करती है और मुख्तलिफ एरिया में दाएं बाएं ये रोडें जाती हैं। इसको फिल फॉर इनिशिएटिव लेके इस रोड को, इस काम को कंटिन्यू किया जाए, ताकि विद इन टाइम, विद इन मंथ ये रोड जो है वो हमारे एरिया की रोड जो है कंप्लीट हो। काम चल रहा है, थोड़ी सी रफ्तार को तेज किया जाए। ये सड़क सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि हजारों लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का सहारा है। तलबा, मरीज और आम शहरी इसी सड़क के जरिए अपनी जरूरियात को पूरा करते हैं। इसलिए इसकी बहाली मकामी आबादी के लिए इंतहाई अहमियत रखती है। इंतजामिया की जानिब से मुतासरा इलाकों में इमदादी इक़दामात भी किए गए हैं और अवाम को यकीन दिलाया जा रहा है कि जल्द ही ये अहम राबिता मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगा। मुश्किलात तो बहुत चल रही है। इस वक्त भी कुछ जगह है जो कोटरंका के साथ है, उस वहाँ पर इस वक्त भी बहुत रोड है जो ख़राब है। वहाँ पर इस वक्त भी अगर बारिश हो जाए तो वहाँ पे गाड़ी इस वक्त भी बंद हो सकती है। तो बहुत मुश्किल देखी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किलात जो है वो
इतनी नहीं देखी, क्योंकि महकमा है जो वो साथ रहा है, लोगों का साथ दिया है, गाड़ी बंद नहीं होने दी है। बहरहाल इस वक्त भी काम चल रहा है। इस सड़क की बहाली के लिए सड़क को वुसअत दी जा रही है और राबिता सड़क के बुनियादी ढांचे को तौसी की जा रही है। पहाड़ी सिलसिले में तामीर होने वाला ये राबिता सड़क आम लोगों के लिए राहत व सुकून का प्रोजेक्ट है। हुकाम के मुताबिक न सिर्फ मुतासरा हिस्सों की मरम्मत की जा रही है, बल्कि मुस्तकबिल में ऐसे नुकसानात से बचने के लिए नए स्ट्रक्चर्स और मुतबादिल रास्तों पर भी गौर किया जा रहा है। काम अच्छा हो रहा है सर, अच्छा काम हो रहा है। जैसे डंगे लग रहे हैं, डंगे भी अच्छे लग रहे हैं और पुली भी अच्छी लग रही है। सब कुछ जल्दी काम होएगा। तो कितनी मुश्किलें देखी यहाँ पे, गाड़ी नहीं लेके आता था बहुत। यहाँ से कई गाड़ी इस नाले में गिरकर चली गई है और गाड़ी रुकी रहती रही, गाड़ी चली नहीं इस पर। रोड ही खराब थी, गाड़ी कैसे चलती? तो पुली डैमेज थी, रोड डैमेज थी, तो कैसे चलती गाड़ी? हम लोग परेशान थे इसकी वजह से। हम बड़ी खुशी हासिल हुई है इस टाइम। राजौरी के पहाड़ों में जारी ये तामीरो बहाली का अमल सिर्फ एक सड़क की मरम्मत नहीं, बल्कि एक खित्ते की सांसों को बहाल करने की कोशिश है। कोटरंका ख्वास सड़क एक बार फिर जिंदगी की राह बनने को तैयार है, जहां हर गुजरता कदम इस बात की गवाही देगा कि मुश्किलात कितनी ही बड़ी क्यों न हो, अज़्म और कोशिश के सामने ज्यादा देर ठहर नहीं सकती। सरहदी जिला पुंछ में जहां रोजगार के मौके महदूद समझे जाते हैं, वहीं अब मवेशी परवरी के शोबे में एक मुस्बत तब्दीली देखने को मिल रही है। इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के तहत किसानों और नौजवानों को न सिर्फ माली मुआवनत फराहम की जा रही है, बल्कि उन्हें खुद कफील बनाने की एक मजबूत बुनियाद भी दी जा रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ये स्कीम दी जिंदगी को बदलने में अहम किरदार अदा कर रही है और कैसे नौजवान अब अपने मुस्तकबिल को खुद संवारने की जानिब बढ़ रहे हैं। चीफ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की जानिब से नाफिज की गई इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के तहत किसानों को डेयरी यूनिट्स कायम करने के लिए 50% सब्सिडी फराहम की जा रही है। इस इक़दाम का मकसद न सिर्फ दूध की पैदावार में इजाफा करना है, बल्कि देही इलाकों में माशी सरगर्मियों को फ़रोग़ देना भी है। इस स्कीम के जरिए किसान जदीद तर्ज पर डेयरी फार्मिंग की तरफ राग़िब हो रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी में नुमाया बेहतरी आ रही है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वेरियस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, आज हम उसी को देखने आए हैं। सबसे पहले तो हमने एक यूनिट्स यहाँ पे इस्टेब्लिश की हैं IDDS इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के अंडर, जिसमें 50% सब्सिडी के साथ आपको एनिमल्स की यूनिट्स प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें कि एक यूनिट में 2 एनिमल्स आते हैं और 50% की सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। मैक्सिमम कोई जो भी इंडिविजुअल है या डेयरी कोऑपरेटिव है वो इसके अंडर अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 20 एनिमल्स मतलब 10 यूनिट्स के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं और इस स्कीम का जो है फ़ायदा ले सकते हैं। इस प्रोग्राम के तहत ज्यादा दूध देने वाली गायों को फरोग दिया जा रहा है, जो रोजाना 15 से 20 लीटर तक दूध फराहम करती हैं। इसके साथ साथ कम पैदावारी वाली नस्लों को बतदरीज तब्दील किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ पैदावार में इजाफा हो रहा है, बल्कि किसानों को बेहतर मुनाफा भी हासिल हो रहा है। जदीद सहूलियात और तकनीकी रहनुमाई ने इस शोबे को मजीद मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा किया है। ख़वातीन भी इस शोबे में आगे आगे आ रहे हैं। मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का, जिन्होंने ये यूनिट्स हमें दी। ये IDDS की स्कीम के साथ हमने जो है ये एनिमल जो लिए हैं, एक यूनिट में दो एनिमल होते हैं, तो ये 2012 से हम काम कर रहे हैं। तो इससे ये हमें फ़ायदा हुआ कि जो एनिमल हमने लाए हैं, इनका जो हम दूध निकालते हैं वो बिक्री जो करते हैं, उससे जानवरों का खर्चा भी चलता है और हम अपने परिवार को भी अच्छी तरह खिला पिला रहे हैं। ठीक है, साथ में बच्चे भी पढ़ते हैं, उनकी इनकम भी मतलब अपनी इसी जो है काम से ही निकाल के देते हैं।
ये स्कीम सिर्फ किसानों तक महदूद नहीं बल्कि नौजवानों के लिए भी रोजगार के नए दरवाजे खोल रही है। देही इलाकों में बेरोजगारी के मसले से निपटने के लिए ये एक मौसर कदम साबित हो रहा है, जहां लोग अपने ही इलाकों में रहकर बाइज्जत रोजगार हासिल कर रहे हैं। इसके नतीजे में न सिर्फ मकामी मईशत मजबूत हो रही है बल्कि खुद इन्हिसारी का रुझान भी फरोग पा रहा है। मैं यूनिट्स की बात करूं तो लास्ट ईयर जो हमारे 91 यूनिट्स जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में इस्टेब्लिश हुए थे और काफ़ी फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को हुआ था। आज चल रहा है वो अच्छा। इस बार जो है हमारे 45 यूनिट्स अभी जो इस्टेब्लिश हो गए हैं और अभी पाइपलाइन में है। वर्मिंग कंपोस्ट जैसे मैंने पहले बताया वो भी काफ़ी सारे लग रहे हैं, 4-5 तो लग चुके हैं। अभी पाइपलाइन काफ़ी अप्रूवल हमारा काफ़ी है, हमारे पास कोई 100 के करीब अप्रूवल है हमारा जी। इसके अलावा ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट्स जैसे मैंने बताया था उसमें भी 50% सब्सिडी है 1.5 लाख तक। तो इसमें क्या है काफ़ी अच्छी स्कीम्स हैं, फार्मर्स को हमारे बड़ा फ़ायदा, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम्स ये लॉन्च की हैं तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है, विकास हो रहा है, हमारे तरक्की डिस्ट्रिक्ट की हो रही है हर जगह से, हमें हर जगह से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। जैसे पहली बार जो मैं कहूँगा मंडी फार फ्लंग एरियाज में मंडी लोरन में हमारे यूनिट्स पहली बार इस्टेब्लिश किए गए। मेंढर में तो ऑलरेडी हो रहे हैं अच्छे से, तो यहाँ पे भी मैं कहूँगा फार फ्लंग एरियाज में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पुंछ में इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम एक नई उम्मीद बनकर उभरी है, जहां मेहनत, सहूलत और हुकूमती मावनत मिलकर एक रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रख रही है। ये इक़दाम इस बात की वाज़ह मिसाल है कि अगर मौक़े फराहम किए जाएं तो देही इलाकों के लोग न सिर्फ अपनी तकदीर बदल सकते हैं बल्कि पूरे खित्ते की मईशत को भी नई समत दे सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमारा आप सबको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हम तक बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगला शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।